Today, I welcome you to the new world of science, that is the biology. Friends, today we are going to learn your first chapter, Heredity and Evolution, from Science 2 of your syllabus. So, friends, before starting with this chapter, I would like to revise some topics that you have learned in your ninth standard. From that, you have learned there was a chapter in your ninth standard, heredity and variation. You have learned that what is heredity, my friends? Heredity is transfer of characteristics from one generation to another. You have learned that. You have also learned that what is variation? Variation is something that we acquire changes from the parents to the offspring. That is variation. Friends, you also know that the reason, the cause behind the heredity is transfer, and that transfer is done with the help of genes. Now, your question will be, where are these genes present? These genes are present in the DNA. And where is this DNA present? DNA is present in the chromosome. And where is this chromosome present? Chromosome is present in the nucleus, and likewise the hierarchy goes on. So friends, in this chapter we will learn that the RNA and DNA is not only responsible for transfer of character, they also help in the proper functioning of the body. This is the first part of your chapter, which revolves around the concept of protein synthesis. This chapter is divided into three parts. The first part is protein synthesis, where the world just revolves behind the topic of protein synthesis. Second is a brief detail about evolutions, and third, the theories behind evolutions. So first part we will only contain all the information which is very beneficial for your 10th standard as well as regarding protein synthesis. So let's start with the chapter. Here you can see that heredity and evolution, class 10. So friends, you are quite acknowledged with the term heredity. Now what do you mean by heredity? I am repeating again that heredity is transfer of character from one generation to another. You have learned it earlier. फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, ये वीडियो को आपको पहले समझना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक को थरोली रीड करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूं, तो वो पॉइंट्स जब आप थरो रीडिंग करोगे लेक्चर देखने के तुरंत बाद, तो आपके पॉइंट्स वो कवर हो जाएंगे। ठीक, और ये जो आपका वीडियो है, इसमें ऐसे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जो एक्स्ट्रा रहेंगे, तो उनको मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपको वो पॉइंट को नहीं इग्नोर करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, द फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट दैट व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आपके टेक्स्ट बुक में ये भी बताया गया है कि जोहान मेंडल is called as the pioneer of modern genetics. Yes friends, because इसका कारण तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. यू हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड ही गेव मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु एक्सप्लेन द वेरिएशन, explain the transfer. So this is how he explained, and he was regarded with that term, that is the pioneer of modern genetics. And here you can see his image, and there are some uh, qualifications, or you can say that some awards that he has been gone, and some with some of the main terms. Now we are talking about Hugo de Varis. Friends, don't read the information given in the slide. Just see the picture and listen what I am speaking. Because besides of reading, if you listen my voice, that will be much better for your 10th standard, because I am covering each and every point from your textbook. Now class, Hugo de Varis. Hugo de Varis, he was the person who gave the theory of mutation. He is known for his mutational theory. इतना ही आपके टेक्स्ट में बताया गया है. ठीक.
when we go more forward, we see that Walter Sutton in 1902, ये 1901 में थे. In 1902, Walter Sutton, he was a scientist, or you can say botanist. He was the first person to observe chromosomes in grasshopper. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम ग्रासहोपर में है, एंड ही सेड दिस थियरी एज क्रोमोसोम. And somewhere his observation gave a new conclusion that the genes which are responsible for heredity is carried by chromosome. Just underline this line from your textbook. This is a very important line that genes are carried by chromosome. This was somewhere it was in just synopsis from the observation of Walter Sutton. Now talking about the next experiment which happened in 1944, that was Oswald Avery, MacLeod and McCarthy experiment. These three scientists somewhere proved that कि DNA is the responsible object in the human body for transformation of characters. समझ रहे हो ये सेंटेंस? गौर करो बच्चे लोग, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि बॉडी में और कोई भी डीएनए का काम नहीं कर सकता. मतलब डीएनए ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसफर कर सकता है और उसके अलावा कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. ये किसने प्रूव किया? एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने. Along with this, he also proved what he proved. Along with this, he also proved that viruses do not have DNA. They only have RNA. This was proved by Avery, MacLeod and McCarthy. Okay, going to the next slide class. यहाँ तक आपका सारा इंफॉर्मेशन था सब इन्हीं डिस्कवरीज के आगे पीछे घूमा. Also, there was one discovery which I have not mentioned in the slide, that was of Francis Jacob and Monod. They gave information about protein synthesis, which is the main concept of our today's lecture. Now, talking about protein synthesis, first we will understand what is the use of RNA DNA besides transferring principle. Friend, आरएनए वर्सेस डीएनए, यहाँ मैंने इसीलिए इसको बनाया आरएनए वर्सेस डीएनए. यहाँ आप स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हो और डीएनए भी पता कर सकते हो. इन योर 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट डीएनए इज ओनली वन, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. फर्स्ट इज एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए. 9th में सिर्फ आपको इनके बारे में बताया था, बट इन नाउ 10th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी व्हाट इज द वर्क ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. फ्रेंड, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन होना चाहिए, कौन सा फंक्शन नहीं होना चाहिए, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द बॉडी दैट विल बी डन इन द बॉडी और दैट इज बीइंग डन इन द बॉडी, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, all this information is present in the DNAs of the cell. Means here you can understand what is the importance of DNA. And these functions are carried out by DNA with the help of synthesis. And who does this synthesis? This synthesis is done by RNA. Therefore, there is a sentence given in your textbook that synthesis of DNA through RNA is called as central dogma. And here you can see this central dogma of molecular biology. See, the DNA, RNA, protein is given like this. Means DNA DNA रहता है, लेकिन DNA से लेके उसको प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स तक कन्वर्ट करने के लिए जो भी सारा खेल है वो कौन खेलता है? RNA खेलता है. इसलिए there is a sentence in your textbook and underline that statement that the synthesis of DNA through RNA is called as central dogma. अब आगे बढ़ते हैं हम आते हैं फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. नो फ्रेंड्स, इफ समवन आस्क्स व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो पहले आप समझ लो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ये याद रखो बस. अब ये होता क्या है, इससे और अच्छा डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. अब मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूं कि ये होता क्या है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोसेस क्लास. क्या होता है
कि पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ फिर इंग्लिश में बताता हूँ. What happens class कि there is a DNA, you know that there is two stranded and double helical structure. So what happens कि a new sequence of RNA is formed between the two strands of DNA. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है कि RNA strand. ये देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा. It is written that this is the RNA strand and these two are the DNA strand. So what happens in the process of transcription? These two strands separate and there is a new RNA strand formed between these two RNA. And this sequence and the sequence are complementary. आप देख सकते हो यहाँ A के साथ U, A के साथ U, A के साथ T, U के साथ A, U के साथ C, G. All these are in a complementary sequence. मतलब कहीं ना कहीं बाइंड हो सकता है. ऐसा mRNA ये प्रोड्यूस होता है. ऐसा ये प्रोड्यूस होता है. You can see this. With this class, so this mRNA is produced and this mRNA has all the information about what protein is to be made or what amino acid should be made. So the information about protein synthesis in this process stored in the mRNA, and this mRNA also consists of uracil instead of thymine. मतलब जो DNA में आप thymine रहता है उसके जगह पे यहाँ क्या होता है, uracil होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो what happens the class when this mRNA strand is produced with having a complementary sequence to the DNA. complementary में क्यों बोला? तो आप ही समझिए, अगर mRNA पे भी A न्यूक्लियोटाइड होता और DNA पे भी A न्यूक्लियोटाइड होता, क्या दोनों कभी बाइंड हो पाते? नहीं हो पाते ना, क्योंकि A के साथ थाइमिन बाइंड होता है, साइटोसिन के साथ ग्वानाइन बाइंड होता है. तो ये सबको अगर बाइंडिंग होना है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही चाहिए, तो इसलिए उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है mRNA. Now this mRNA comes out of the nucleus and comes in the cytoplasm. We all know that where is DNA is present in the nucleus, and when this process is done, this transcription process is done, the mRNA comes out of the DNA से बाहर क्रोमोसोम, DNA means chromosome, and chromosome से बाहर आके न्यूक्लियस में आ जाता है. न्यूक्लियस से निकलकर क्रोमोसोम में he comes in cytoplasm of the cell. यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह से ये न्यूक्लियस है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से निकल के ये mRNA यहाँ पे बाहर आ गया. सो दिस व्हेन दिस mRNA कम्स नाउ. आप बोलोगे सर ये मैसेज लाता कहाँ से, लिखता है क्या कहीं? नो क्लास. ऑल द मैसेज is put in a codon. You know that codon, and there are three codons. इसीलिए हम उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. देर आर थ्री कोडॉन्स, और तीन कोडॉन में एक सीक्वेंस रहता है, एंड द इंफॉर्मेशन इज पुट इन दैट कोडॉन. आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है कोडॉन के बारे में कि सीरीज ऑफ 3 एडजेसेंट बेसेस इन एन mRNA मॉलिक्यूल कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड कॉल्ड अ कोडॉन. तो मतलब 3 सीक्वेंस का एक कोडॉन होता है, और इस कोडॉन में क्या रहता है, आपका इंफॉर्मेशन रहता है. अब ये कोडॉन जो ट्रिपलेट कोडॉन आता है, अब इससे ट्रिपलेट कोडॉन आता है, इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन. तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा समझ में आया कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए रहता है, डीएनए थोड़ा साइड हो जाते हैं, उनके बीच में एक नया स्ट्रैंड प्रोड्यूस होता है, और स्ट्रैंड किसका होता है, एमआरएनए का, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं. वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है, सारा इंफॉर्मेशन डीएनए से लेता है कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है या फिर कौन सा प्रोटीन बनने वाला है. प्रोटीन का इंफॉर्मेशन लेता है और सेल से बाहर निकल जाता है. ओके. और ये जो बाहर आता है तो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, और सारा इंफॉर्मेशन ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में अपने पास रखता है. बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसलेशन, let's have a view to some scientist. Let's be grateful to him that Hari Govind Khorana, he was an Indian to get a Nobel Prize in Physiology Medicine in 1968. आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि बिकॉज ही समवेयर फाइंड सम ट्रिपलेट कोडॉन, उन्होंने कुछ ट्रिपलेट कोडॉन को डिकोड किया और कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन डाला, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला. अब we are starting with the process of translation. Friends, what happens in translation? आप सभी का क्वेश्चन होगा कि सर ये ट्रांसलेशन में होता क्या है. फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन मतलब आप समझ सकते हो ट्रांसफर होता है. ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है. अब ट्रांसलेशन ट्रांसफर क्या होता है? What happens class? There is a RNA named tRNA. tRNA का फुल फॉर्म मतलब ट्रांसफर RNA. This transfer RNA brings anticodon. What it brings?
इट ब्रिंग्स एंटीकोडॉन। अब आप बोलोगे सर ये एंटीकोडॉन क्या है? एंटीकोडॉन हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन। जैसे अगर कोडॉन में अगर आपने ACT का कोडॉन है, किसका? ACT का, पहले बात ACT का होगा नहीं, ACU का अगर कोडॉन है तो नीचे कौन सा सीक्वेंस आएगा? UGA। तो मतलब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो उसके साथ बाइंड हो सके। सो इट ब्रिंग्स एन एंटीकोडॉन विद अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंड हर एक अमीनो एसिड का, क्यों आप जानते हो प्रोटीन सिंथेसिस होकर अमीनो एसिड बनने वाला है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो हर एक एंटीकोडॉन का एक अलग अलग, हर एक अमीनो एसिड का एक अलग अलग एंटीकोडॉन होता है जो ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, विच वी कॉल इट एज tRNA। नाउ व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्लास? ट्रांसलेशन प्रोसेस में होता है कि आपने देखा mRNA जो आया था, अब उसी mRNA के ऊपर ये tRNA आकर बाइंड होने लगते हैं। यू कैन सी दिस इज द tRNA। ये tRNA आकर इनके नीचे ये जो एंटीकोडॉन है वो बाइंड होने लगते हैं, और दिस जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको लाइसिन बोलते हैं। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। डी ट्रांसलेशन आकर इनको जुड़ने लगते हैं, और ये जो ट्रांसलेशन इनको जुड़ते हैं, ये जो ट्रांसलेशन जो जुड़ते हैं इन्हें हम प्रोसेस क्या कह जाते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। और इनको कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। तो मतलब बाइंडिंग ऑफ एंटीकोडॉन एंड कोडॉन एंड इंफॉर्मेशन, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ट्रांसलेशन में होता है। अब हम बात करते हैं द लास्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसलोकेशन। अब आप बोलोगे सर ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अब फ्रेंड्स ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस। क्या है ट्रांसलोकेशन? कौन सा प्रोसेस है फ्रेंड्स? कि अब आपने देखा होगा क्या होता है ट्रांसलोकेशन में। अब आपने देखा tRNA ऊपर से आया, mRNA नीचे से आया, दोनों आके जुड़ गए। लेकिन ये दोनों तभी जुड़ेंगे ना जब कोई इनको गम से चिपकाए। गम मतलब क्या? अब हम कोई चीज जोड़ना रहता है हम गम से चिपकाते हैं, वही सेम काम करता है rRNA, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। व्हाट हैपेंस, दिस राइबोसोमल आरएनए आकर एक जगह बैठ जाता है, और ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये दोनों के बाइंडिंग जो स्ट्रिप्स बन चुके हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स जो हैं, ये स्ट्रिप्स ऐसे आगे 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 चलते रहते हैं, और राइबोसोमल आरएनए ये दोनों इनको बाइंड करता रहता है। तो राइबोसोमल आरएनए इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि आप देख रहे हो लोकेशन चेंज होते जा रहा है, वो स्ट्रिप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और राइबोसोमल आरएनए उनको बाइंड करते जा रहा है। और जब ये सारी बाइंडिंग हो जाती है देन इज एन अमीनो एसिड इज फॉर्म, एंड दिस अमीनो एसिड आफ्टर प्रोटीन के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं, एंड दीज आर हेल्पफुल फॉर द फंक्शन ऑफ बॉडी। तो यहाँ हमारा लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लेट्स वंस रिवाइज प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। डीएनए होता है, डीएनए में एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए वो निकल के आता है, दिस एमआरएनए का जो भी सारा प्रोसेस रहता है उसमें क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन है। फिर टीआरएनए पिक्चर में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर आरआरएनए पिक्चर में आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। और इसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ तक प्रोटीन सिंथेसिस हमारा खत्म होता है, ये 3 प्रोसेस से। आगे आते हैं थोड़ा म्यूटेशन के बारे में भी आपके टेस्ट में बताया गया है। फ्रेंड्स व्हाट इज दिस म्यूटेशन? In biology, any change in the nucleotide sequence as a result of failure of system to revert the change is called as mutation. फ्रेंड्स अब आप बोलोगे ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर जो आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, देयर इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, आपका जो डीएनए है उसका एक सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस में एक भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। एंड जस्ट डोंट थिंक कि ये छोटी सी गड़बड़ी कुछ कर नहीं सकती। This small change can result into a huge loss. आपको जानते हो एक सीक्वेंस चेंज होने से इंसान को बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है। And you are aware about it. You have listened that chromosomal sickle cell anemia is a mutation disorder. एक म्यूटेशनल डिसऑर्डर है, एंड ऐसे ढेर सारे डिजीज म्यूटेशनल डिसऑर्डर से होते हैं, एंड दिस इज अबाउट म्यूटेशन। यहाँ आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, again and again read the first 2 pages of the textbook, because that will help you in revising the concept. Next lecture we will talk about the evolutions, how human evolution, and that about the theory of evolution,
and how that evidences prove that evolution. Okay, we will also talk about the evolutions, and in the third lecture we will complete the chapter by talking about the theories and human evolution. So thank you class, and study like this only. Bye bye, take care and study well.